Good afternoon. Jai Hind to all students. Last period, we had studied about the social differences, and it was began or determined. It was just set forth by the Dharma Sutras and by the religious text, who has had what the status in society and what the rights in society, and who were deprived of the asset or access to the property. About the women's, we have studied, and about the Sudras, and only the prosperity was just a having the prosper and having the riches rights was only to the kings and elites, or as well as the Brahmins, Kshatriyas, and the uh, Vaishya. They had the okay, and the women, slaves, and others were completely deprived of that. We have studied well. Now here, one thing I have to study the about the social differences. The Brahminical text, according to the Brahminical text, we have gone through that कि what were the accession towards the property हम लोगों ने देखा भी. लेकिन now we are going to see these social inequalities to regulate this understanding of social inequalities and the and of the institution required to regulate the social conflicts. No doubt, there was a social conflict in the society according to them, according to the Brahminical say text, और that social ये Brahminical text now proves and makes the clear the Marx ने जो सोचा, what he thought about the uh, accession in the society, Karl Marx. This was the completely comes true about this Brahminical text. A certain section of the societies, they were the deprived of that, and now we see that how they were the deprived uh, by the social scripture. A scripture, now the religious scripture, which now deprived the people and a certain section of the society from their rights, deprived. And now here we are going to see these social institutions and the regulations and the social conflicts to regulate the social conflicts by the Buddhist text. And in myths found in, there is a myths according to the imagination. And one thing, they are looking the society from viewpoint of the social contract. Social contract and social regulation, and social regulation was just as the social contract. Yes, social contract we find in the social contract of the रूसो. रूसो का आप फ्रेंच में जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं, अबाउट दैट ओरिजिन ऑफ स्टेट अगर आपने पढ़ा है तो उसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में 3 थ्योरीज बताए जाते हैं. मैं उतना डिटेल्स पॉलिटिकल साइंस में नहीं जाना चाहता, लेकिन 3 थ्योरीज में वी नो दैट कि फर्स्ट हॉब्स, लॉक एंड रूसो. हॉब्स, लॉक एंड three thinkers are included in the social contract theory. तो हॉब्स का इमेजिनेशन है कि our society in the beginning, what kind of the our society was. There was no law, there was no rules and regulation, there was no kings and anything. There were peoples were the nasty, they were British peoples were, and there was a anarchy all were. Amongst them, the people now choose one of the
a strong man for the protection. Second, the Locke, जॉन लॉक, इसकी थ्योरी है कि नाउ ऑन द शिप्स, ये मानते हैं कि शिप पर लोगों में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एंड बाय दिस कॉन्ट्रैक्ट the the people now gave away their rights to the king, and king now assured them for the protection from the aggression and protection from the any uh, any disasters, किसी भी चीज से उनको प्रोटेक्शन करना, एनी अटैक और एग्रेशन जो भी है, और इंटरनल लोगों से या जो भी है, दे हैड गॉट द। सिमिलरली हम देखते हैं कि नाउ similarly we see that this they now got into the agreement, or both sides ensured it. Nothing was in the case of violation of the king's promise, and if the king back out from his promises, in that case what will be done, क्या किया जा सकता है, क्या किंग को रिप्लेस किया जाता है? नथिंग, इट वाज नॉट सेड इससे मतलब। लेकिन रूसो का जो आप पढ़े हैं सोशल कॉन्टेक्ट, तो कहते हैं कि यस, कंडीशन वाज सो, पीपल्स वाज द वेरी पीसफुल, पीपल्स वेर द वेरी पीसफुल एंड काम एंड नेचुरल स्टेट था। लेकिन जैसे जैसे एज द सिविलाइजेशन डेवलप किया, नाउ पीपल नाउ कम्स इन द ईटर इन द चेंज। उसने कहा भी कि पीपल बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इन चेंज। चेंज ऑफ व्हाट? उसने जो प्राइमेटिव स्टेट्स था उसके बहुत अच्छा उसने डिस्क्रिप्शन दिया, गुड डिस्क्रिप्शन। लेकिन वो मानता है कि एज द सिविलाइजेशन ग्रोथ हैपेंड, द ह्यूमन बीइंग्स आर इन द चेंज। वो बंधा हुआ है, जकड़ा हुआ है, सिविलाइजेशन चेंज। तो ये उसने सोशल कॉन्टेक्स्ट में उसने इमेजिनेशन किया, और उसने कहा कि ठीक है, किंग आया, किंग्स को लोगों ने पावर दिए, ठीक है। ये भी है कि किंग से प्रॉमिस किया कि ही विल प्रोवाइड द सिक्योरिटी टू देम फ्रॉम बोथ साइड्स, द एक्सचेंज, द प्रोमिसेस एक्सचेंज। बट ये भी कहा गया कि इफ द किंग एंड सोशल, उसने ये भी बात की सोशल विल की, उसने एक जनरल विल की बात की थी। जनरल विल इट मीन्स if the any if if the king does not uh, follow the kings, they does not follow the promises, so then after in that case this will be the, now the king, the people would have the right to overthrow the kings and establish the rulers according to the wills of the people. This was the said in that. So according to this theory, understand the there was a revolutionary, इसका जो theory था रूसो का, ये मच revolutionary था। तो यहाँ हम सुत्त पीटक में, देर आर 3 पीटक, विनय पीटक, अभिधम पीटक और सुत्त पीटक। तो इन दिस सुत्त पीटक देयर इज अ मिथ, एक स्टोरी है, परिकल्पना है, फिक्शंस है। और इन दिस फिक्शंस में कहा गया, सजेस्ट दैट ओरिजिनली ह्यूमन बीइंग का एक ओरिजिनल स्टेट के लिए ओरिजिनल स्टेट का डिस्क्राइब किया गया है कि व्हाट वाज द ओरिजिनल एंड द प्राइमेटिव स्टेज ऑफ द पीपल। तो इन दिस हियर इज said that Peter suggests that originally human beings did not have the fully evolved. He was in the half evolved, and bodily forms were not appeared, and nor the world of the plants fully developed. There are no plants world developed, not human beings fully developed. All beings lived in idyllic state of a carefree state. Idyllic means
केयर फ्री, बहुत फ्रीडम था। उसने वही कहा, मैं आई टॉक अबाउट द रूशो, कि मैन बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर एवरीवेयर इज इन चेंज। तो बिगिनिंग स्टेट्स था वो बिल्कुल केयर फ्री स्टेट्स। Now, there are no any constraint and restriction upon, and state of the peace. Everywhere there was a peace and taking form of nature from the nature, and why they needed for the each meal, and the peoples were the collectively taking from the nature. The no need of the no any kind of the concept of the individual position, no greed, no nasty, no deceitful, deceitful behavior, very calm and quiet, and the peace and tranquility was rampant everywhere in that state. And greedy, but however, there was a gradual deterioration this state of human being। आगे कहता है ये विनय सुख पिटक में लिखा गया कि धीरे धीरे as the gradually this conditions now deteriorated, begin to deteriorate, this state of peace and tranquility now deteriorated, and moreover became the increasingly greedy. People now appeared, now became greedy and vindictive or deceitful। लोग deceitful हुए, vindictive हो गए, greedy हो गए, and now moreover this led to them the wonder, and ultimately this same say and the act became the very, they wonder, what if we were to select a certain king? Now they thought that they should select a king who should be the wrathful, and when the indignation is right, who should ensure, उन्होंने कहा and should rightly be ensured censored। और उसने कहा कि वो rightful king क्या करेगा, censored करेगा, and इसे कंट्रोल करेगा इस ग्रीड को and deceitfuls and vindictive act को, which would rightly be, and the now, and whosoever deserves for the banished will be the banished। जो whosoever, and we will give him the return and proportion of the right। ये भी कहा गया कि they will, the people will give the in return, he will now restore the peace and order in the society, and will the prosperity bring the peace in the society, and in lieu of that they would provide the king and that man what they would provide the as returns the corns and the rice as a tax, they will provide, and chosen by the whole people, and he will be the chosen by the whole people, he will be the elected king। यहाँ पे एक रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट्स की वो बात करते हैं। एंड नाउ मोर ओवर एंड द होल पीपुल, एंड ही विल बी द नोन एज द महासम्मत, द ग्रेट इलेक्ट। और उसका नाम कहा जाएगा दैट किंग महासम्मत, मीन्स ग्रेट इलेक्ट, किंग इलेक्टेड बाय द पीपल। ये कॉन्सेप्ट हमारे सुत्त पिटक में जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, जबकि ब्राह्मणिज्म्स का बिल्कुल डोमिनेंसी था उस वक्त, इस फ्री थिंकिंग्स थे, और उन्होंने वो परसेप्शन दिया जो यूरोप के लोग, यूरोपियंस जो 16 सेंचुरी में यूरोपियन से और 17 सेंचुरी में उन्होंने डिवाइस किया, और उसको कहा कि हमने फर्स्ट थ्योरी दे दिया। नो एट ऑल, हम रिपब्लिक हमारा बहुत ओल्ड है। आप पढ़े हैं महाजनपद में जो बज्जी है, वैशाली है, या मल है, या शाक्या है, दिस ऑल द क्या है ये, दिस वेयर द स्मॉल रिपब्लिक्स, और इलेक्शन सिस्टम वाज देयर, किंग्स वेर इलेक्टेड। कुछ सम ग्रेट मगध स्टेट है या अदर एमर्ज एज अ मोनार्कल सिस्टम, लेकिन ये भी मोनार्कल सिस्टम कैसा था, व्हाट काइंड ऑफ बेनिवोलेंट मोनार्की था मगध स्टेट्स। तो यहाँ पे ये जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, इसने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की, जो हम मॉडर्न एज में जिस चीज को हम तलाशते हैं, जो एस्टेब्लिश्ड की है डेमोक्रेटिक स्टेट्स।
इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो यूरोप कहता है कि हमने दे दिया, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी हमारे सुद पीटक जो कि हाउ मेनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगर देखा जाए बैक इट वाज द we have the here, and moreover this suggests that institution of kingship was based on human choice. अब इसमें यह है कि जो किंगशिप है या राज किंगशिप जो किंग है राज्य है that is the human choice, not by the power and autocratic power, no by the kings and hereditary, no, it is the elected. This kingship is the elected and human choice. We and the taxes given by the in form of the payment services rendered by the king. King क्यों टैक्स लेता है? किंग टैक्स डेमोक्रेटिक स्टेट क्या कहता है कि हम टैक्स इसलिए लेते हैं कि हमें हंड्रेड्स ऑफ द डेवलपमेंटल वर्क करते हैं पीपल्स के लिए, जो पैसा आता है दैट इज द मींट फॉर द पीपल. तो सिमिलरली यहाँ कहा गया है कि नाउ द विच टैक्सेस द पीपल आर गिविंग according to the Buddhist text, so those are taxes are mint for the kings is taking the tax for that. अब मेडिवल में भी अकबर टाइम में भी पढ़ेंगे, अबुल फजल ने भी लिखा, अबुल फजल ने भी लिखा है कि जो टैक्स लेता है सब, जो किंग अकबर जो टैक्स लेता है, इट इज द व्हाट फॉर द रेवरेंड, क्योंकि फॉर द सर्विस वो ले रहा है, ही इज डूइंग द सर्विस टू द पीपल, तो लोगों को सर्व कर रहा है, लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, उनको फैसिलिटेट कर रहा है, फॉर दैट ही इज द टेकिंग द टैक्स. And moreover, we can see the suggest the institution kingship, and at the same time it reveals recognitions of human agency in creating institutionalization, economic and social relation. Institutions, economic and social relation, institutions के through, that is the relation. There are, it reveals the recognition of human agency now in creating or institutionalizing the economic and social relation there. And now we see that there are other implications also. For instance, if the human beings were responsible for creation of a system, they could also change it in the future. ये भी कहा गया कि revolutionary ये चीज है जो that the word has been used by the Rousseau. If the king is not performing his duty and king is not responsible, then he will be the replaced by the people. यहाँ भी यही बात है. Here this is the fact that if the human beings were responsible for the creation of system, they could also change it in the future. अगर वो नहीं satisfied है तो human beings क्या है? He is responsible. He could replace the king, replace the महासम्मत, elected महासम्मत. तो ये डेमोक्रेटिक पैटर्न्स वहाँ पे रिवील्ड होता है, जिस डेमो हम कहते हैं कि फर्स्ट रिवोल्यूशन हुआ फ्रांस में, वहाँ से लिबर्टी एंड इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी आया. तो दैट थिंग्स एंड फ्रीडम और फ्रीडम या जो सिविल राइट्स हैं वो हम यहाँ पाते हैं. अब हम महाभारत एज हमने तो I have already mentioned in the class students about the, but certain explanations needed here for that. Now one thing is that महाभारत एक critical text है, we know very well. और now after the examine V.S. Subhankar ने एक exercise किया उस पे, और we know that it was the collected महाभारत text and the versions from all over the country, it was the collected, and then after critically studies, एक analytical studies महाभारत की गई कि when written, when written, how written, why written, who wrote, what the views you find in the writings, these all things, and what the perception of the writers for whom it was written, इसके लिए लिखा गया. All things is the we find here, they examine the
In the text, the historians examined first thing. Now they examined the whether the texts were written in Prakrit, whether texts were written in Pali and Tamil language, probably used by the ordinary people. वहाँ ये एग्जामिन किया गया कि जो पाली में लिखा गया, प्राकृत प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया, तमिल में लिखा, ये जो महाभारत लिखे गए, इट वाज द ब्रॉडली हैंडल्स एंड रेड एंड यूज बाय द कॉमन मैन. ये कॉमन मैन इसको ज्यादा यूज किया. This is the and Tamil language and the now or in Sanskrit a language meant exclusive for the priest and the elites के लिए. लेकिन जो संस्कृत महाभारत था, जो संस्कृत में लिखे गए, it was the writing was done exclusively for the elites and the elites Brahmins. संस्कृत की जो राइटिंग की गई थी महाभारत में, ये पर्टिकुलर ये टारगेट या इंटेंडेड इंटेंशनली ये लिखा गया था ब्राह्मण्स के लिए, लेकिन ऑर्डिनरी पीपुल्स के लिए पाली में, प्राकृत में और द तमिल में एंड द अदर लैंग्वेज में इसको लिखा गया. लोकल लैंग्वेज हम एक तरह से कह सकते हैं. एंड मोर ओवर दे कंसीडर द नाउ कंसीडर द काइंड्स ऑफ द टेक्स्ट. इसमें टेक्स्ट का कलेक्शन किया गया था, मैंने पहले ही बताया आपको, और इसके एक कंसिडरेशन किया गया. एंड नाउ वेयर दिस मंत्र learned and chanted by the ritual specialist. क्या इस मंत्र को रिचुअल स्पेशलिस्ट इसके रिसाइट करते थे? स्टोरी दैट पीपल कुड हैव द रीड और द हर्ड देन रीटोल्ड इफ दे फाउंड देम द इंटरेस्टिंग. क्या इसे कहा गया? अगर इसको पाया जाता था तो क्या रीटोल्ड किया गया? एंड इट वाज रिसाइटेड एज अ मंत्र by the Brahmins. Besides, they try to find out about the authors. कुछ पर्सपेक्टिव्स और इसके बाद ये महाभारत का जो क्रिटिकल स्टडी किया गया, इसमें ये है कि किस पर्सपेक्टिव्स में लिखा गया है. द एंड आइडिया शेप्ड द टेक्स्ट एज वेल एज इंटेंडेड ऑडियंस एज वेरी ऑफन ऑथर्स कीप द इंटरेस्ट ऑफ देयर ऑडियंस इन माइंड. लेकिन जो भी इसमें ये देखा गया कि ऑडियंस के इंटरेस्ट को कम देखा गया. इसमें जो भी लिखा गया महाभारत में इस टेक्स्ट में, दैट वाज द ऑडियंस से इंटरेस्ट वाज नॉट सो मच एंड देयर ऑडियंस माइंड व्हाइल कंपोजिंग देयर वर्क एंड दे ट्राई टू ascertain the possible date of the composition and completion of the text as well as place where they may have been the composed. ये महाभारत का एक बहुत बड़ा क्रिटिकल इश्यूज है. इसका डेट, पॉसिबल डेट रखा गया, कंपोजिशंस किया गया, एंड इट इज ओनली आफ्टर मेकिंग दिस असेसमेंट दैट दे ड्रॉ ऑन कंटेंट ऑफ टेक्स्ट arrive at an understanding of their historical significance. As हम देखेंगे कि this is particularly difficult task for text complex in the Mahabharata. ये चीजें इश्यूज इसमें एनालिटिकल किया गया, एनालिसिस डेट के बारे में, इसके कंपोजिशंस के बारे में, ऑडियंस को क्या टारगेट, किस पर्सपेक्टिव से लिखा ऑथर्स ने. दिस ऑल क्वेश्चंस आर target questions are must say tried to be the understand by the authors. Language and the content के अगर देखा जाए तो if you see that कि language क्या था महाभारत का, in the Sanskrit it was, and although there were the version in the other language also, कई भाषाओं में लिखा गया महाभारत को कई लैंग्वेज में, और संस्कृत यूज द महाभारत इज द सिंपलर than that of the Veda. Now वेदास की जो संस्कृत है जो लिखे गए, तो महाभारत की जो संस्कृत का अगर कंपैरिजन करते हैं तो ये थोड़ा इजियर है. वेदास की जो संस्कृत है, इट इज द टू दैट. एंड मोर ओवर पर्टिकुलर डिफिकल्ट टास्क टू टेक्स्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स महाभारत. यहाँ पे अगर देखा जाए वर्जन के फॉर्म में, संस्कृत यूज्ड इन महाभारत इज द सिंपलर एंड मोर. Historians usually classified the contents of the present text under two broad heads. Historians इसको considers करते हैं या इस पर इसे स्टडी करते हैं कंटेंट्स को दो तरह से.
टू कंटेंट्स, एक नैरेटिव और दूसरा डिडक्टिव. तो नैरेटिव्स दोज पार्ट एंड द पोर्शन एंड सेक्शन ऑफ द महाभारत which are which now depicts the stories, तो उसको हम नैरेटिव पार्ट्स करते हैं. और जो दोज भी which now contains the contains which part contains the social prescriptions, दैट इज कॉल्ड द डिडक्टिव. लेकिन महाभारत में भी पाया गया आफ्टर एनालिसिस के बाद कि ये कोई वाटर मार्क नहीं है, हार्ड कोई मार्क नहीं है. इन नैरेटिव्स में डिडक्टिव पाया गया है, वहां भी सोशल प्रिस्क्रिप्शन एंड और डिडक्टिव में भी नैरेटिव. तो ये क्या है, क्रिस क्रॉस महाभारत में देखा गया. एंड नाउ डिविजन्स जो है वो वाटर टाइट नहीं है, डिटेक्टिव का और नैरेटिव्स का. और डिटेक्टिव्स में हम देखते हैं कि नाउ भगवत गीता, ओके, दिस इज द पार्ट ऑफ द डिटेक्टिव जिसमें कि सोशल प्रिस्क्रिप्शंस दिया गया है, कृष्ण ने उसको प्रिस्क्रिप्शंस के फॉर्म में. और नैरेटिव कंटेंट्स द ए सोशल मैसेज, वहाँ नैरेटिव्स में भी है. हाउएवर जनरली हिस्टोरियंस से जो है महाभारत मीन टू ड्रामेटिक, हिस्टोरियंस से इसको ड्रामेटिक मानते हैं. एंड नाउ मूविंग स्टोरी एंड डिडक्टिव पोर्शंस प्रोबेबली द एडेड लेटर. और ये भी कहा जाता है कि जो डिडक्टिव पोर्शंस हैं इसको लेटर ऐड किया गया, लास्ट में इसको लेटर ये में ऐड किया गया, बाद में देखा गया, ओके. और इसमें ऐड किया गया डिडक्टिव पोर्शंस को. और जो स्टोरी का जो पोर्शंस था दिस वाज द लेटर अर्लियर. और जैसे इंटरेस्ट की बात ये है कि नाउ डिस्क्राइब एज द इतिहास विद इन अर्ली संस्कृत लैंग्वेज में, ट्रेडिशन में इसको इतिहास की तरह यूज किया गया महाभारत को. एंड द लिटरेरी मीनिंग क्या था, द टर्म दस इट वॉज, which is why it is the generally translated as history. और इसको हिस्ट्री की तरह क्यों ट्रांसलेट किया गया. नाउ वाज देयर ए रियल वॉर दैट इज रिमेम्बर्ड इन द एपिक. अभी क्वेश्चन ये भी है कि क्या ये रियल वॉर था. अभी भी लॉट्स ऑफ डाउट इज अबाउट द महाभारत, ये रियल वॉर था. नाउ इट इज नॉट श्योर. Historians think that memory of an actual conflict amongst kinfolk was preserved in the narratives. उन्होंने कहा कि जो kinfolks में जो battles हुआ, जो cousins में, ये narratives में है. Other points of that there is no other corroborative evidence of the battle. लेकिन कहते हैं कि ये narratives में तो लिखा गया, लेकिन कोई corroborative से evidence नहीं है महाभारत को इसको confirm करने के, इसके supportive कोई other एविडेंस नहीं है कि जिसे कंफर्म किया जा सके कि महाभारत बैटल से हुआ इन फॉर्म में, इन एक्चुअल फॉर्म. एंड नाउ अब इसके साथ एक और सवाल है जो महाभारत का अगर हम एनालिटिकल स्टडी करते हैं, इंटरेस्टिंगली द टेक्स्ट हियर ऑथर्स डेट के बारे में. फर्स्ट हु रोट द टेक्स्ट, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बिग क्वेश्चन जो हिस्ट्रियन, और सेवरल आंसर हैं इसका. और कुछ तो द ओरिजिनल स्टोरी प्रोबेबली कंपोज, कुछ कहा गया है स्टडी के बाद में कि जिसका जो महाभारत का ओरिजिनल स्टोरी था, इट वाज द कंपोज्ड बाय द चैरियटियर्स बार्ड नोन एज सूतर. चैरियटियर्स बार्ड जो होते थे, ड्राइविंग जो करते थे, उन्होंने लिखा है क्योंकि दे वेयर आई विटनेस ऑफ द बैटल्स. बैटल में किंग्स के साथ जाते थे, दे यूज्ड टू, और किंग्स के साथ वो ड्राइव करते थे. और ये चैरियट सुताज who generally accompanied the Kshatriyas and Kshatriyas warriors to the battlefield composed the poem celebrating their victories. और उनके विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए they used to write down, कंपोज करते थे उनकी ब्रेवरीज को, उनके गैलेंट्स को. they used to compose and battlefield पोएम्स और विक्ट्री के बारे में, उनके अचीवमेंट के बारे में. और दिस कंपोजिशन नाउ यूज्ड टू बी द सर्कुलेटेड ओरली. ओरली इट वाज इन सर्कुलेशन इन सोसाइटी. एंड देन फ्रॉम 5th century देखा गया कि ब्राह्मण्स नाउ टेकन द टास्क ऑफ द कंपोजिंग द. इसके बाद ब्राह्मण्स स्टार्टेड राइटिंग और बिगेन टू कमिट दिस. एंड द टाइम व्हेन chiefdoms and the those Kurus, ये ब्राह्मण्स
उस वक्त स्टार्ट किए जब कुरुज और चिफडम्स जो छोटे कुरुज और जो किंग्स हुए कुरु किंगडम्स के, और पंचाल अराउंड होम द स्टोरी ऑफ द एपिक रिवॉल्व, क्योंकि जिनके बारे में ये स्टोरीज लिखा गया था या रिवॉल्व्स, तो उन्होंने क्या किया कि ब्राह्मण्स को उसमें इम्प्लाइड किया ब्राह्मण्स को राइटिंग्स करने की, फॉर दैट कि क्यों कि टू संग देयर हीरोइक एक्ट्स, उनके हीरोइक एक्ट्स को, उनके अचीवमेंट्स को लिखने के लिए ब्राह्मण्स नाउ स्टार्टेड दिस एंड वे आर ग्रेजुअली बिकमिंग द किंगडम्स, और धीरे धीरे ये किंगडम्स के फॉर्म में। डिड द न्यू किंग्स वांट देयर इतिहास टू बी द रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व मोर सिस्टमेटिकली? अब एक क्वेश्चन यहाँ है कि क्या ये राजा अपने हिस्ट्री को, अपने अचीवमेंट्स को मोर सिस्टमेटिकली प्रिजर्व करना चाहते थे? इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट upheavals that often accompanied the establishment of these states, और इनके एस्टेब्लिशमेंट में कई अपीवल्स हैं, अप्स एंड डाउन्स हैं, एंड वेयर ओल्ड सोशल वैल्यूज वेयर ऑफन रिप्लेस्ड बाय द न्यू नॉर्म्स, और धीरे धीरे जो ओल्ड सोशल वैल्यूज थे दोज वेयर नाउ ब्रेकिंग डाउन, वो टूट रहे थे। नए नए स्टेट्स, न्यू लाइफ स्टार्ट हो रहा था, अंडरस्टैंड, पीपुल्स वेयर नाउ, अर्बनाइजेशन हो रहा था, इट प्रोसेस वाज, एंड पीपुल्स वेयर नाउ violating, flouting the social norms. So for to re-establish and restore the social norms, तो restore करने के लिए they now made the efforts for that, और उन्होंने employed किया ब्राह्मण्स राइटर्स को, एंड रिफ्लेक्टेड इन सॉन्ग पार्ट्स ऑफ द, जिसमें कि ये सॉन्ग पार्ट्स ऑफ स्टोरीज में ऐसा मिलता है, और रिप्लेस्ड बाय न्यू नॉर्म्स। हियर एक चीज और है कि नाउ कंपोजिशन ऑफ दिस टेक्स्ट बिटवीन 200 से बीसी से लेकर 200 कॉमन एरा तक, बिफोर कॉमन एरा 200, और दिस वाज द पीरियड व्हेन वर्शिप ऑफ विष्णु वाज ग्रोइंग इन द सोसाइटी, विष्णु एंड द नाउ, और इट वाज द विष्णु ग्रोइंग इम्पोर्टेंस। कृष्ण वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ द एपिक, कृष्ण आप जानते ही हैं कि उनका रोल क्या महाभारत में रहा है, नॉट टू से अबाउट मच दिस, कमिंग टू बी द आइडेंटिफाइड विद द विष्णु सब्सिक्वेंटली बिटवीन 200 circa 200 common era, large detective sections resembling the मनुस्मृति, और इसमें ये भी देखा गया कि 200 एडी से लेकर 400 एडी तक के लार्ज स्केल जो इसके डिटेक्टिव पोर्शन है या जो वर्सेस हैं वो क्या है कि मनुस्मृति से एडेड किए गए, मनुस्मृति, एंड दिस इज द विथ दिस एडिशन इनिशियली परहैप्स द लेस देन द, और हम आपको पहले भी कहे थे कि ओरिजिनली 8,800 वर्सेस थे, यानी 10,000 आप कह सकते हैं, और कंप्राइज फर्दर द 1 lakhs verses. This Norse composition is traditionally attributed the sage named the Ved, named the Vyasa, और इसको ट्रेडिशनली attributed to the व्यास, इसमें एडिट किए गए, और ये व्यास को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने, तो महाभारत कोई एक टाइम का नहीं है, 1000 ईयर्स इसको इसे आगे लिखने में टाइम लिया। नाउ सो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम लोग इतना ही, ओके। और महाभारत को इसको मैंने तो क्रिटिकल एडिशंस तो आई हैव ऑलरेडी टॉट, ये तो इसी तरह मैंने रिविजन्स के लिए आपको कुछ रिमाइंड करा दिया, क्योंकि इसको मैंने पढ़ाया है एडिशंस का, और क्रिटिकल एडिशंस, एंड देन आफ्टर द नेक्स्ट पीरियड में हम आगे की टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे।